So the soldier marched through the town. पहला फर्स्ट जो है, शिप सेल्स अक्रॉस द सी बट ट्रेन run on rails. Second is the soldiers marched through the town. So in this way you have to write. Okay, आपको ये तीनों भी क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट है, यूज द गिवन सेंटेंसेस एज क्लूज एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. यूज द गिवन सेंटेंसेस एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. दैट इज a manson dash very hard to build a house. So works, right? W is given, WORKS, works. Next, second is, we cannot play carom without striker. We cannot play. So PLAY, play. Third, don't yawn when someone is talking to you. Yawn when someone is talking to you. Fourth, I drink, नहीं, फोर्थ वन कौन सा है, ये आएगा. So Sarah and Samir drink, DRINK, drink juice instead of milk every day. And next is fifth one, that is, my father irons, irons my school uniform for me. And the first is here, Taranveer and Maya regularly walk in the park. Okay. I do my work myself. Okay, it's complete. Next we'll go to chapter number 6. Chapter number 6, adjectives. We'll go to adjectives. Okay. So what is adjectives? Do you know what is adjectives? An adjective is a word used to describe a noun or a pronoun. Adjective is a word used to describe a noun or a pronoun. So basically जो noun और pronoun को describe करना होता है उसे कहते हैं adjective. Okay. For example, an angry man avoid road. So this is adjectives describing nouns. And ये जो है, it is green, he is fat. This is adjective describing pronouns. Underline the appropriate adjectives in the following sentences. The sun is round.
अंडरलाइन करो. Everyone likes to sleep on a soft bed. Mummy gave me a sweet chocolate. Okay, in this way you have to underline all the adjectives. तो उसमें भी आपको समझना चाहिए कि कौन सा नाउन है और कौन सा प्रनाउन है. हमने ऑलरेडी सीख लिया है व्हाट इज नाउन एंड प्रनाउन, राइट? सो देयर आर एडजेक्टिव्स हु डिस्क्राइब नाउन and there is also adjectives who describe pronouns. So now complete the crossword with the opposite of the given adjectives. Okay, so first is smooth, first we'll write down rough. Smooth, rough, R-O-U-G-H. Second is heavy, so light. Fourth is happy, sad. Your fifth one is new, old. Third is high, low, tall, short, wet, dry. Understood all of you how it was? कैसे लिखना था? Next है draw the following as specified. Draw the following as specified. A pair of blue shoes. दो शूज आपको ड्रॉ करने हैं, एक पेयर का दो शूज ड्रॉ करने हैं ब्लू कलर के. अ पेंटेड फेस, फेस ड्रॉ करना है और पेंट करना है उसको, ठीक है. नाउ आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स गिवन बिलो. क्रॉस देयर एडजेक्टिव्स. अभी हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? एडजेक्टिव दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन. मतलब ऐसे एडजेक्टिव को हमें सर्कल करना है, आइडेंटिफाई करना है जो डिस्क्राइब नहीं करेगा किसको? नाउन को. सो अभी देखो ये नाउन है, लेकिन कौन सी चीज़ें यूज हो सकती? ओल्ड भी यूज हो सकता है नाउन के साथ, बिग, स्मॉल, न्यू. लेकिन ये फैट है, वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता. अ हाउस इज फैट बोल सकते हैं क्या? नहीं. अ हाउस इज ओल्ड, अ हाउस इज बिग, अ हाउस इज स्मॉल, अ हाउस इज न्यू. वी कैन डिस्क्राइब थ्रू ऑल दिस वर्ड्स, बट वी कैन नॉट डिस्क्राइब यूजिंग दिस वर्ड फैट. So cross this word. क्रॉस करना है आपको, ठीक है. अ गर्ल इज शॉर्ट, अ गर्ल इज लॉन्ग. लॉन्ग बोलते हैं क्या कभी? नहीं. गर्ल इज टॉल, गर्ल इज थिन, गर्ल इज लवली. वी कैन यूज दैट टू डिस्क्राइब हर, बट वी कैन नॉट यूज लॉन्ग. सो क्रॉस मार्क. ओके, समझा आपको क्या करना है? ठीक है. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव्स. Tea is hot but ice is cold. A car has long wheels. A sunflower is polite. Monday is the ill day of the week. Children like sweet chocolates. What do children like? Children like sweet chocolates. So now we'll go to chapter number 7, comparison. So what is comparison? Comparison is sometimes we use adjective to show how people and things compare with one another.
कंपैरिजन इज अ वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड है वो. हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम चीजों को कंपेयर कर सकें, पीपल को या वस्तु को, थिंग्स को कंपेयर कर सकें. कंपैरिजन नहीं होगा तो हाउ डू वी नो कि क्या इसमें डिफरेंट है. सो व्हाट वी ऐड ER to the adjective to compare two things and EST to adjective to compare more than two things. हम ER कब यूज करते हैं? जब दो चीज रहते हैं. और EST हम कब यूज करते हैं ये एडजेक्टिव? जब दो से ज्यादा थिंग्स होते हैं. जैसे कि ध्रुव इज टॉल बट अकेल इज टॉलर. ER यूज हो गया देखो. लेकिन जब एक से दो चीज हम ज्यादा बोलते हैं तभी हम यूज करते हैं एडजेक्टिव टू कंपेयर मोर देन EST. EST यूज करते हैं. अक्षय इज द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल. तो हम एक से दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग EST. दैट इज व्हाट द कंपैरिजन इज. Complete the table. Adjective ER and EST. So loud, louder, loudest. Short, shorter. Short, shorter. Shortest. Safe, safer. Safest. वेट, वेटर, वेटेस्ट. ओके, सो आपको ऐसे लिखना है. नेक्स्ट है अंडरलाइन द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम वंस गिवन इन ब्रैकेट्स. फ्रॉम वंस गिवन इन द ब्रैकेट. whale is larger than an elephant. Larger than an elephant. करेक्ट एडजेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है. द टॉर्टोइस इज द स्लोवेस्ट एनिमल आई नो. माई स्किपिंग रोप इज लाइट. माई स्किपिंग रोप इज younger longer than yours. A feather is very lightest. Feather is very light. Next, my sister is younger than me. A mouse is a small animal. The strongest wrestler will win the competition. Rupal wrote a short play. Rupal wrote a short play. ठीक है. Sometimes adjectives change in a special ways to show comparison. They do not follow any pattern. Sometimes adjective क्या होता है, अपने आप में अलग चेंजेस स्पेशल वे में चेंज होता है ताकि कंपैरिजन शो हो सके. वो लोग कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं. लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट. Filling the blanks with the appropriate adjectives from the brackets and complete the sentences. So, Nikhil's project was better than everybody else. This is the worst play I have ever seen. Sachin Tendulkar is the most talented batsman I know. So आपको ऐसे लिखना है. ठीक है. Hello. So now we'll go to chapter number 8. Synonyms and antonyms. Okay.
synonyms and antonyms. So a synonym is a word that has the same or almost the same meaning as another word. Synonyms क्या है? सेम मीनिंग, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है एंड लेकिन वर्ड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं. जैसे कि एंगर, फरी, ग्लो, शाइन, फेथफुल, लॉयल. तो ये सारे बच्चों क्या होते हैं ना, ये वर्ड सेम होते हैं बट उसके अलग अलग नाम होते हैं. मीनिंग सेम होता है उसका, ऑलमोस्ट सेम होता है. मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी. स्टार्ट, बिगिन. स्टार्ट का क्या आएगा? बिगिन. जॉइन, कनेक्ट. हॉट, वार्म. sad, unhappy, big, large, and finish. So now tick the words nearest in the meaning to the words given below. Tick the words nearest in the meaning to the words given below. So beside, near, hip, pile, strange, uncommon, shore, beach. So rewrite the following sentences substituting the underlined words with their synonyms. So my mother told my sister to choose one out of the 3 dresses. My mother told my sister to select choose one out of the 3 dresses. Next is keep your room tidy. Keep your room clean. Who will pardon you for such a mistake? So like this you have to complete this following sentence by substituting the underlined words with their synonyms. Okay. Next is complete the crossword with the antonyms of the given words. Back, front, front, front. Second one is bottom. Where's the number 2 here? Okay, it's here. Down, bottom, top. Third one is tiny, huge. Fourth one is beautiful, ugly. Fifth one is sad, happy. Sixth, pull, push. Seventh is loose, tight. And
Last one is 7th. Okay. Next, question E. Circle the atoms of the following words in the grid given below. So, interesting. आपको फॉलोइंग वर्ड्स को ढूंढना है नीचे. ओके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डर्टी, उसका एटोमिक्स क्या होगा? क्लीन. So where is it's written clean? You can see CLEAN, clean. Empty का full, FULL, full. So where is it? FULL, full. So उसका opposite, उसका same meaning आपको ढूंढना है. Sweet, sour, SOUR, sour. Difficult, easy, EASY, easy. Okay, understood all of you? So now we'll go to chapter number 9, the elephant and the pots. The elephant and the pots. So this is a story about the elephant and the pots. You can see. So एक क्या होता है? Once there lived a potter named Villain. Potter का नाम क्या था? Villain. In a village called Puliur. कौन से गांव में रहता था? Puliur. He was making arrangement for his son's wedding. Puliur जो था वो अपने बेटे का शादी के लिए अरेंजमेंट्स कर रहा था. तो उसने क्या प्लान किया था? उसने प्लान किया था कि मैं अपने बेटे का जो शादी है उसमें एक हाथी लेकर आऊँगा. ग्रैंड पोजीशन रात को उसने सोचा था. रात में नाइट ऑफ द वेडिंग ही विश टू टेक हिज सन एंड द ब्राइड ऑन एलिफेंट बैक राउंड द विलेज इन द प्रोसेशन. उसने सोचा था अपने बेटे को और बहू को, डॉटर इन लॉ को, वो हाथी पे बिठाकर घर पे रिटर्न लेकर जाएगा शादी होने के बाद. तो उधर एक मनी लेंडर था. मनी लेंडर यानी कि जो पैसे का लेन देन करता है ना, वो लोग. उसके पास एक हाथी था. तो वो उसके पास मांगने जाता है. मनी लेंडर का नाम था मानिक चंद. ओके. मानिक चंद हु लिव्ड इन द विलेज, हिज नेम वॉज मानिक चंद. और उसके पास क्या था? हाथी था. ही हैड एन एलिफेंट. हिज नेम वॉज मानिक चंद. विलन वेंट टू हिम एंड सेड, सर मे आई बोरो योर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग. तो क्या बोलता है कि सर मुझे आपका हाथी चाहिए अपने बेटे की शादी के लिए, तो क्या आप मुझे दे सकते हो? सो द मनी लेंडर अग्रीड द लेंड हिम हिज एलिफेंट. मनी लेंडर है वो एग्री कर लेता है. ठीक है, चलेगा, आप लेकर जाइए, आप बोरो कर सकते हो. और जिस दिन शादी होती, ऑन द डे ऑफ वेडिंग, द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट. जिस दिन शादी रहती है उसी दिन ब्राइड एंड दूल्हा और दुल्हन उसके ऊपर से जाते हैं, मतलब किसके एलिफेंट पे बैठ के जाते हैं. ऑल द गेस्ट वॉक बिहाइंड स्लोली. सब गेस्ट जो रहते हैं, देखो हम जब बारात लेके जाते तो हम धीरे धीरे उनके पीछे जाते रहते हैं ना. सो जो गेस्ट लोग थे वो लोग धीमे धीमे पीछे से चल रहे थे. लिसनिंग टू द स्वीट म्यूजिक. स्वीट म्यूजिक चालू था, धीमा सा आवाज म्यूजिक चल रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे. व्हाट अ ग्रैंड पोजीशन इट वाज. बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट था वो. हाउ हैप्पी एवरीवन वाज. सब ज़्यादा खुश थे. आफ्टर द प्रोसेशन
When villain was taking the elephant back to Manikchand's house, the elephant suddenly fell down. पूरा इवेंट ख़त्म होने के बाद विलन जो था वो मानिकचंद का हाथी रिटर्न लेकर जाने के लिए, उसे देने के लिए जा रहा था, हाथी को लेकर जा रहा था. सडनली क्या होता है, हाथी गिर जाता है. सडनली क्या होता है, एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड. वो गिर जाता है और वहीं के वहीं मर जाता है. उसको कुछ तो होता है, वो गिरता है, फिर गिरने के बाद उधर के उधर ही मर जाता है. ही रश टू मानिकचंद एंड रिपोर्टेड दिस. वो तुरंत क्या करता है, विलन क्या करता है, तुरंत ही भाग के जाता है और उसको बताता है, किसको, जिसका हाथी था, मानिकचंद को बताता है. सर आई एम वेरी सॉरी फॉर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ सडन. बोलता है कि सडनली आपका जो हाथी है वो मर चुका है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा कीजिए मुझे. सो आई विल गिव द प्राइज ऑफ द एलिफेंट और आई गेट यू अनदर एलिफेंट. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. वो विलन जो है वो क्या बोलता है कि मैं आपको इसके पैसे देता हूँ या फिर मैं आपको दूसरा एलिफेंट ला के देता हूँ. मतलब एलिफेंट के जो भी पैसे आप बोलोगे वो मैं आपको दे देता हूँ या फिर मैं आपको दूसरा एलिफेंट खरीद के देता हूँ. लेकिन आपको क्या लगता है, मानिकचंद रेडी हो जाता है एलिफेंट जाता है तो उसको? नहीं. मानिकचंद बोलता है, मानिकचंद वॉज वेरी सैड. जैसे ही वो सुनता है बहुत सैड हो जाता है कि उसका एलिफेंट मर चुका है. बट ही डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम विलन. ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर. मानिकचंद बहुत सैड हो जाता है और क्या बोलता है कि मुझे ना तो पैसे चाहिए ना तो मेरे को कोई और एलिफेंट चाहिए, मुझे मेरा ही एलिफेंट चाहिए. अब बताओ ये पॉसिबल है क्या? वंस द एलिफेंट इज डाइड, वन द एनिमल इज डाइड, कैन ही ब्रिंग बैक द सेम एलिफेंट? वही एलिफेंट को लेकर आ सकता है क्या? नहीं. बट मानिकचंद, द ओनर ऑफ द एलिफेंट वाज टेलिंग, आई वांट द सेम एलिफेंट. गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू द कोर्ट, सेड ही. मानिकचंद बोलता है मुझे मेरा एलिफेंट रिटर्न दो वरना मैं तुमको कोर्ट लेकर जाऊंगा. मानिकचंद कंप्लेन टू द जज दैट विलन डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट. मानिकचंद क्या कंप्लेन करता है कि विलन ने उसका एलिफेंट रिटर्न नहीं दिया है. विलन एक्सप्लेन टू जज, योर ऑनर, it is true I borrowed his elephant and took it to the procession but it died suddenly. I did not kill it. वो क्या बोलता है कि ये सच है कि मैं इसका एलिफेंट लेकर गया था लेकिन अभी वो सडनली मर गया, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है. आई एम रेडी टू पे द प्राइस. वो क्या बोलता है, मैं पैसे देने के लिए भी रेडी हूँ और प्लस इसको दूसरा एलिफेंट ला के देने के लिए भी रेडी हूँ. प्लीज़ योर ऑनर मेक हिम अग्री टू दिस. बोलते हैं कि आप इसको एग्री कीजिए, मतलब इसको एग्री होने के लिए, उस चीज़ के लिए आप इसको बोलिए. द जज सेड टू मानिकचंद, योर एलिफेंट डाइड सडनली, यू मस्ट एक्सेप्ट द मनी और अनदर एलिफेंट इन इट्स प्लेस. वॉट डिड द जज से? इट सेड कि यू शुड एक्सेप्ट द मनी और यू शुड एक्सेप्ट द अदर एलिफेंट instead of that. But Manikchand would not listen to the judge. He said, your honor, he borrowed the elephant from me, he must return only that elephant. वो उस चीज़ के लिए भी एग्री नहीं होता, बोलता है कि योर ऑनर, इसने मेरा एलिफेंट जो लिया उसी को मुझे रिटर्न देना चाहिए. द जज आस्क्स देम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. जज क्या बोलता है, तुम लोग अभी जाओ और कल सुबह में आओ. Then he called villain and said, don't come to court in the morning, stay in your house. क्या बोलता है कि दूसरे दिन तुम कोर्ट में मत आओ, तुम अपने घर पे ही रहना. और फिर क्या करना है आपको, आपके घर के जितने भी मटके हैं वो आपको डोर के तरफ लगा के रखना है. डोर की तरफ लगा के रखना और डोर बंद करके रखिए. और मैं मानिकचंद को तुम्हारे घर पे आपको बुलाने के लिए भेजूंगा. आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू. एज सुन एज ही विल कम, द डोर इन अ हरी एंड ऑल द पॉट्स विल ब्रोकन. क्या बोलता है, जैसे ही वो आपको बुलाने आएगा, घर का डोर ओपन करेगा, द पॉट्स विल गेट ब्रेक.
क्योंकि आपने अगर पॉट्स वो डोर की तरफ लगा के रखे रहेंगे तो गुस्से में आएगा, डोर जैसे ही ओपन करेगा सारे पॉट्स गिरेंगे और टूट जाएंगे। ये कौन बोलता है? जज बोलता है। फिर बोलता है कि तुम उस पर इतना चिल्लाना ताकि सारे नेबर्स जमा हो जाए, और प्लस तुम उसके ना तो पैसे लेना ना तो पॉट्स रिटर्न लेना, उसको बोलना कि मुझे वही सेम पॉट्स रिटर्न चाहिए। Then shout and call the neighbors, tell them your pots were broken by Manikchand. He will offer you money for the pots. Don't accept it. Come and report it to me. बोलते हैं कि उसके बाद तुम फिर वो रिपोर्ट जो है वो मेरे पास लेके आइए, रिपोर्ट करना मुझे। विलन डिड एज द जज टोल्ड हिम। विलन ने क्या किया? जैसे ही जज ने उनको जो उसको करने बोला था, ही स्टार्टेड डूइंग इट एंड ही ऑलरेडी डिड इट। Manikchand broke Villain's pots while entering in house. Villain hollered, "Oh my pots, my precious pots, my forefathers' pots, all broken by this man." क्या बोलता है कि ये मेरे जनरेशंस, उसके जितने जनरेशंस थे, उसके फोरफादर्स जितने थे, उसके डैडी, उसके और भी डैडीज जो थे, उनके टाइम से वो पॉट्स रखे हुए थे, सारे अभी टूट चुके हैं। ये आदमी ने ये सारे पॉट्स तोड़ दिए। मानिकचंद सेड, "आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स." मानिकचंद ने वही बोला, क्या बोला? कि मैं तुमको इस पॉट्स के पैसे देता हूँ या फिर नए पॉट्स खरीद के देता हूँ। बट विलन सेड, "नो नो नो, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स, दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, कम आई विल टेक यू टू द कोर्ट." क्या बोलता है? कि वो मेरा फैमिली का प्रॉपर्टी था, अभी तू आ, अभी मैं तुम्हें लेके जाता हूँ कोर्ट में। द जज लिसन टू विलन्स केस, ही टर्न टू मानिकचंद एंड सेड, "व्हाट डू यू से नाउ?" जज ने विलन का पूरा केस सुनता है और फिर मानिकचंद की तरफ देख के बोलता है कि अभी आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू, अभी तुम क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहते हो? यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू विलन। मानिकचंद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। जब ये घटना उसके साथ होती है तो उसका जो मिस्टेक था वो अपने आप में रियलाइज करता है कि हाँ, मैंने क्या गलती किया, मैं क्या बोल रहा हूँ। द जज सेड, "इफ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू विलन, ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू." जज क्या बोलता है कि अगर तुम उसके सेम पॉट्स तुम अगर उसको रिटर्न करते हो तो विलन भी आपका सेम एलिफेंट जो है वो आपको रिटर्न करेगा। और वो तो पॉसिबल था नहीं क्योंकि एलिफेंट ऑलरेडी मर चुका था। हाउ कैन ही रिटर्न दैट एलिफेंट टू हिम? एंड इसने जो है वो पॉट्स तोड़ दिए थे। हाउ कैन ही रिटर्न दैट पॉट्स बैक टू हिम? सो दैट वॉज टोटली इम्पॉसिबल। सो पुअर मानिकचंद हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग। ही लॉस्ट हिज मनी बिकॉज ऑफ हिज सिली स्टबर्ननेस। मानिकचंद जो था उसको फुकट में घर पे जाना पड़ा। क्यों? ना तो अभी उसको पैसे मिले ना तो कुछ मिला। पहले तो उसको एटलीस्ट पैसे मिल रहा था या फिर पैसे के जगह पे एलिफेंट देने के लिए वो रेडी था, लेकिन जब वो अड़े रहा, स्टबन यानी कि एक ही चीज़ पे जिद करना, इसी की वजह से उसने पैसे भी गंवा दिए। उसको पैसे मिल रहे थे दूसरा एलिफेंट खरीदने के लिए, या फिर वो बोल रहा था कि मैं खुद एलिफेंट खरीद के तुमको देता हूँ। He didn't agree for both the things, and now when the decision came to up, पूरा decision कोर्ट में आया, and when he realized his mistake, he didn't gain anything and he went back empty-handed with the loss of money, just because of his silly stubbornness. So we have sent you the answer keys. आपको इसके आंसर्स टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ओके, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सो विल बी सेंडिंग यू द आंसर कीज ऑफ दिस। ओके।